Now here we'll study about the class 11, and this one is the part 2. The topics are Mendelic periodic table. He got at the time was the 63 elements were discovered. What happens in the alkali metals? He took about hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, silver, cesium, and gold. And what he said that the down the group, these are called the down the group of the vertical column. यहाँ पर देखो आपका एटॉमिक मास, आपका एटॉमिक मास वो बढ़ता चला गया और एटॉमिक साइज आपका बढ़ता चला गया, पर यहाँ पर आयनाइजेशन और एनर्जी क्या हो गया, वो घटता चला गया। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वो होता है आपका मेटल का ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको खींच करके जल्दी निकाल पाता है ना। So that is called ionization potential energy. Now we'll come to, and the metallic character down the group is increasing when you go from top to down, and the atomic mass is also increasing. Here 1.01, and as we go down the group, it ends with a gold 197. He found that they have a similar physical and chemical properties. Next come to group 2. Group 2, he placed the barium, magnesium, calcium, zinc, strontium, cadmium, barium, and mercury. He placed in the group 2 elements. And he said, predicted that these elements are nothing but the S block elements along with the alkali S block elements. And when we go down the group, the metallic character is increasing. From the top, the non-metal will become coming, then ultimately the metalloids, and ultimately the with the metal. Metalloids are nothing but it is a kind of a substance of the metal or the non-metal. It will show the character of a non-metal and a metal at the same time, because it will conduct इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, वो सारे शो करता है। तो मेटल क्या हो गया, पर वो ब्रिटल होता है, टूटता है, तो मेटल तो कभी टूटता नहीं है। एंड दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड द मेटल्स। नाउ वी कम टू द ग्रुप 3. Group 3, what happens? Boron, aluminium, and here he give 2 slots, and yttrium, indium, lithium. Whatever he finds that this one is nothing but the metallos. So whenever we go down the group, the atomic mass is increasing, and the atomic size of the element is also increasing. When the atomic size of the element increases, means ionization energy is decreasing, because to take the outermost electron from the metal is very simple, but those elements which is having the innermost electron to take out, it is very difficult. So here when you go from the top to down the group, we found the metallic character increases, but the ionization energy is going to decrease, and the atomic size is increasing. Let's talk about the boron, aluminium, yttrium, indium, lithium. Now in this group 3 elements, he found that boron is having the metallic character as well as the non-metallic character. And aluminium and later he found this, he has given the Eka boron and Eka aluminium, which is going to discover later, because at that time वो element का discovered नहीं हुआ था. Then he went to yttrium, indium, lithium. और यहाँ पर आप देखो तो atomic mass क्या बढ़ रहा है? Yes, 10.8. और आखिरकार क्या होगा? किसमें end करा? 139. मीन्स यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और आपका एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, पर आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है। अगर घट नहीं कर रहा था तो यहाँ पर मेटल कभी भी ये नहीं बनाता। नाउ यू कम टू ग्रुप 3. ग्रुप 3 में देखो, ये पहला ये कार्बन, ये आपका नॉन मेटल है, पर आपका सेकंड क्या आ गया? मेटालॉइड्स आ गया। फिर इसके बाद में ये देखो टाइटेनियम। फिर इसके बाद में एक स्लॉट उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि एट द टाइम वो एलिमेंट कभी वो डिस्कवर्ड नहीं हुआ, फिर बाद में हुआ। जिर्कोनियम 10 लैब 2। यहाँ पर आपका कॉमन वैलेंसी अगर देखेंगे तो कार्बन 4 है, तो आखिरकार सब कभी somewhere down the line वो आपका एटॉमिक 4 दिस वैलेंसी 4 शो करता है। आप ये टीम में भी देख लिया, टीम का 2 वेरिएबल वैलेंसी है, एक है आपका 2, एक है आपका 4। एक आपका स्टैनस बनाते हैं, एक आपका स्टैनिक बनाता है, ठीक है ना। ऐसे कर 4 वैलेंस। अब मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, हम हमारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज हो रहा है? यस, इंक्रीज हो रहा है। 12 से 232, एंड लास्ट वन इज द थोरियम। और वहां पर क्या हो रहा है? आपका नॉन मेटल से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका मेटलॉइड्स आ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा? मेटल्स आ गए। मींस हमारा डाउन द ग्रुप क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, एंड द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, एंड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ द मेटल, इट इज वेरी सिंपल। सो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? घट रहा है, और उसके ऊपर से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। नाउ वी कम टू ग्रुप 5. नाइट्रोजन, फास्फोरस, वैनेडियम, आर्सेनिक, नोबियम, एंटीमनी, टैंटलम, बिस्मथ। यहाँ पर आप देखिए ये नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या हो गया? यहाँ आपका नॉन मेटल हो गया, पर आपका देखिए आर्सेनिक क्या होगा? मेटलोइड हो गया। मीन्स हमारा मतलब है नॉन मेटल से जाते जाते ग्रुप डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि नॉन मेटल से ट्रांजिशन किसमें हो रहा है? आपका मेटल में हो रहा है। मीन्स यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और रेडियस बढ़ रहा है, और उसके हिसाब से एटॉमिक मास आपका बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का 40 और बिस्मथ का कितना है? 20। नाउ
नाउ विल कम टू ग्रुप 6। ग्रुप 6 में भी आप अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका दोनों मेटल नॉन मेटल हो गया। तो दोनों नॉन मेटल का देखो, ये क्रोमियम, सिलिडियम, मोलिब्डेनम, टेलुरियम, देन आपका ये आपका आ गए वो टंगस्टन, ये आपका आ गए यूरेनियम। अब यहाँ पर देखो ये देखो दोनों क्या है आपका, ये नॉन मेटल है, ठीक है ना। और इनका आपका वैलेंसी ऑक्सीजन का आपको पता है 2 है, पर ये सल्फर क्या हो गया, यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी दिखा रहा है 2, 4 and 6, पर आपका यहाँ पर वैलेंसी उतना काउंट मैटर नहीं करता। यहाँ पर आपका कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट का, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो ज्यादा कंसर्न करते हैं। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप वी फेल दैट द फर्स्ट स्टार्टेड विद द नॉन मेटल एंड देन विद द मेटलॉइड। यस, tellurium is a metalloid and all below you'll find the metal, means यहाँ पर ionization potential energy like the previous, it is going to decrease, atomic size increases, as the atomic size increases metal character also increases. Now let's come to the halogen group, fluorine, chlorine, bromine, iodine. In between that he has got a magnesium here, manganese. So manganese, nowadays we know that it is nothing but it is a group 2 elements which is nothing but it is a rare earth metal होता है। पर इनका प्रॉपर्टी यहाँ पर ये शो कर रहा था इनिशियली, कौन सा प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, एक फिजिकल और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। आप देखो यहाँ पर नॉन मेटल से स्टार्ट हो रहा है, पर कहीं ये टेलुरियम क्या है आपका, मेटालॉइड्स है ना। मेटालॉइड्स मैंने उसको बोला जो एक सब्सटेंस होता है जो आपका मेटल कैरेक्टर भी शो करता है और नॉन मेटल कैरेक्टर भी शो करता है। फिर उसके बाद में एक गैप उन्होंने छोड़ दिया उस टाइम में, बाद में वो डिस्कवर्ड हुआ, वो एलिमेंट वो आपका मेटल कुछ नहीं था, वो उसका नाम था पोलोनियम और उसका एटॉमिक मास था 209, ठीक है। पर इन्होंने पहले पोलोनियम ने मेंडलीफ ने डिस्कवर नहीं करा, वो आपके बाद में जिक्र, क्योंकि उस टाइम खाली 63 एलिमेंट्स था। नाउ वी विल कम टू फ्लोरीन, क्लोरीन का ये बात हम लोग करते हैं। डाउन द एलिमेंट द एटॉमिक मास इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एंड द metal radius or the metal atomic radius or the metal size is increasing. That's why to take the electron out from the metal, it is very simply, that's why we call it ionization energy is nothing but the ability to take the valence electron out from the positive metal। तो यहाँ पर पॉजिटिव मेटल है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल लगेगा नहीं, सिर्फ आपका क्या लगेगा, यहाँ पर आपका सिर्फ मैंगनीज में लगेगा। Now the eighth one group he has got 1, 2, 3 iron, copper, nickel, ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium and palladium। ये आपका ट्रांजिशन मेटल कैरेक्टर क्या होता है, जो इसका आपका वो कैरेक्टर शो करेगा p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच में, s और p ऑर्बिटल के बीच में शो करेगा। और यहाँ पर क्या हो गया, हाफ जो d ऑर्बिटल का कंपोजिशन कितना था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इट इज 10, पर यहाँ पर वो बिलो 10 वो दिखाएंगे, 7 दिखाएंगे, 9 दिखाएंगे, 5 दिखाएंगे, 4, दैट इज कॉल्ड पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर क्या होगा, ये सारा का सारा जो मेटल दिखा रहा है, आयरन, कॉपर, निकल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, ये सारा कैटलिस्ट मींस कैटलिस्ट का तरह वो बिहेव करता है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, पर खुद वो चेंज नहीं होता है, मींस आपका वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, नहीं तो रिएक्टेंट नहीं तो प्रोडक्ट कुछ पार्टिसिपेट, खाली उसका सिंपल जॉब है सर कि वो रेट ऑफ द रिएक्शन को खाली वो बढ़ा देना। तो सारा ये आपका हो गया ग्रुप ए के। तो इन्होंने यही सब जो डिस्कस करा है, मैंने सारा प्रॉपर्टी लिख दिया है, और आपका ये मेटलॉइड्स का मैंने आपको बोल दिया है। तो ही हैज गॉट दैट ऑन द टॉप non metal is going to show, and in the between the metallic character is maximum, and down the group we have the atomic this metallic character is maximum down the group, and along the period ionization potential is increases, because when you go along the period the metallic character is decreasing. That's why to take the electron from the outermost element of that, the ionization energy is going to increase, but below the group it is going to be lesser and lesser. Okay, then till then, if you understand me, and those who are new, please subscribe me, and those who are following me, please press the bell icon and like me if you really like the how I present and my explanation, and we will do in the theoretical in the next lecture. Okay, and do share with your friends also, don't forget that. So okay, thank you.